Namaste, my dear students of degree TDC Part 3. I am Dr. Gajendra Prasad Singh, Head and Associate Professor, Department of Chemistry, Jamnilal College, Hajipur, Vaishali. Today, I am going to discuss a new type of organic reaction, that is elimination reaction. As we know that there are three types of organic reactions. First is substitution reaction, second is addition reaction, and the third is elimination reaction. We have already discussed in detail substitution reaction and addition reaction. Today, I am going to discuss elimination reaction. विद्यार्थियों, आज हम इलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन प्रतिक्रिया या इसे हम निराकरण प्रतिक्रिया भी हिंदी में कहते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक से दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह हटते हैं और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, तो वैसी प्रतिक्रिया को हम निराकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। When two or more atoms or groups are removed from this substrate molecule, that is organic compound, to form multiple bond, that is double bond or triple bond. Such reaction is called elimination reaction. वास्तव में यह निराकरण प्रतिक्रिया योगशील प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत है, उल्टा है। इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. So, elimination reaction can also be defined as the reverse of addition reaction is called elimination reaction. हम लोग अब निराकरण प्रतिक्रिया के उदाहरणों पर विचार करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, जब ब्रोमोइथेन यानी इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, यानी इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है तो इथिलीन यानी इथीन प्राप्त होता है. When bromoethane is heated with alcoholic potassium hydroxide solution, ethylene is obtained. CH2 bond CH2 bond Br, it is bromoethane. When heated with KOH alcoholic solution gives ethylene or ethene, CH2 double bond CH2 plus KBr plus H2. Here we are concerned with the main product, that is ethylene or ethylene. Here we see that in bromoethane there are 7 sigma bonds. That means the number of sigma bonds available in bromoethane is 7 and the number of pi bond present in bromoethane is 0. That means no pi bond is present. There is no pi bond
available in bromoethane. But when this bromoethane is heated with alcoholic potassium hydroxide, this gives ethylene or ethene. In ethene we see that there are 5 sigma bonds and there is 1 pi bond present in ethylene. Here we see it is quite clear that in bromoethane there was 7 sigma bonds and 1 pi bond, but in ethene there is only 5 sigma bonds and 1 pi bonds. हमारा यही कहना है कि इस प्रतिक्रिया में मतलब ब्रोमोइथेन से इथिलीन और इथीन में जो परिवर्तन हुआ, जो प्रतिक्रिया हुई, उसमें 2 सिग्मा बंधन का टूटना हुआ और 1 पाई बंधन का बनना हुआ. मतलब 2 sigma bonds are broken and 1 pi bond is formed. Now we come to the second example. When ethanol is heated with conch sulfuric acid at 165 degree to 170 degree Celsius, ethene is obtained. जब इथेनॉल को सांद्र गंधकाय अम्ल की उपस्थिति में 165 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इथीन और इथाइलिन प्राप्त होता है. CH3 bond CH2OH when heated with conch sulfuric acid at 165 to 170 degree Celsius, this gives ethene or ethylene, that is CH2 double bond CH2 plus H2. Here is the main product ethylene or ethene. Here also we see, यहाँ हम लोग बिल्कुल देखते हैं कि इथेनॉल में सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 7 है और पाई बॉन्ड की संख्या 0 है, लेकिन प्रोडक्ट जो है दैट इज इथाइलीन, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 5 है और पाई बॉन्ड की संख्या 1 है. हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इथेनॉल की जब हम प्रतिक्रिया कराते हैं सांद्र गंधकाय अम्ल के साथ 165 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो इथिलीन प्राप्त होता है. यानी इस प्रतिक्रिया में भी 2 सिग्मा बंधनों का विखंडन होता है, 2 सिग्मा बंधनों का टूटना होता है और 1 पाई बंधन का निर्माण होता है. अतः हम कह सकते हैं कि इट इज क्वाइट क्लियर इन एलिमिनेशन रिएक्शन 2 sigma bonds are broken and 1 pi bond is formed. So on this basis, elimination reaction can also be defined as the reaction in which 2 sigma bonds are broken and 1 pi bond is formed is called elimination reaction. उपरोक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि वह प्रतिक्रिया, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें 2 सिग्मा बंधनों का टूटाव होता हो, विखंडन होता हो, टूटता हो और 1 पाई बंधन बनता है, उसको हम निराकरण प्रतिक्रिया कहते हैं. द रिएक्शन इन विच 2 sigma bonds are broken and 1 pi bond is formed is called elimination reaction. In the great majority of such reactions, the groups are lost from adjacent carbon atoms. हम उपरोक्त दोनों प्रतिक्रियाओं में देखते हैं, जैसे हम जो प्रथम प्रतिक्रिया थी ब्रोमोइथेन when heated with alcoholic potassium hydroxide to give ethylene और ethene. इस प्रतिक्रिया में एक
नंबर कार्बन परमाणु से ब्रोमीन जुड़ा था और दूसरे कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा था। ब्रोमोइथेन में एक नंबर कार्बन परमाणु से, पुनः इस पर विचार हम लोग करें थोड़ी, कि एक नंबर कार्बन परमाणु से ब्रोमीन जुड़ा है और दूसरे कार्बन परमाणु से H जुड़ा है, तो यही H और Br हटा है और उस कार्बन परमाणु के बीच में एक पाई बंधन का निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से इस तरह की प्रतिक्रियाओं में अगल बगल के कार्बन परमाणुओं से जुड़े परमाणु या परमाणु समूह हटते हैं। इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ सच रिएक्शंस द ग्रुप्स आर लॉस्ट फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। One of the groups eliminated very often a proton and the other nucleophile resulting in the form of a multiple bond। निश्चित रूप से ऐसी प्रतिक्रियाओं में अगल बगल के कार्बन परमाणु से दो परमाणु या परमाणु समूह हटते हैं, जिसमें एक परमाणु निश्चित रूप से प्रोटॉन होता है। लगभग निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु हटता है और दूसरा एक कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, एक दूसरा परमाणु समूह होता है, और इन दोनों के हटने से मल्टीपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार इस तरह की प्रतिक्रियाओं में हम कह सकते हैं कि वैसी प्रतिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक से दो परमाणु समूह या परमाणु हटते हैं और उनके स्थान पर एक पाई बंधन द्विबंध का निर्माण होता है, उसको हम लोग निराकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। थैंक यू।